Okay, so now we'll discuss the third point, uh, third from your syllabus, which is normal distribution. Okay, so till now, we are considering uh, the probability of discrete random variable where the experiment takes the discrete values. So now we have to discuss the probability of a continuous random variable. So now here uh, we'll have a uh, we'll have a continuous random variable, and using the normal distribution we have to find the probability of that continuous random variable. Okay, so what are the examples of continuous random variable? So you can consider this. Okay, height of the person in centimeter. Okay, why this gives you the continuous random variable? You can't find a gap between any two consecutive numbers, है ना? So that is nothing but a continuous. जैसे डिस्क्रीट में आपको क्लियरली पता हो कि 2 and 3 में गैप आ जाता है, सो इट बिकम अ डिस्क्रीट. So but in case of continuous random variable, you can't find a gap between two consecutive numbers. Okay, so that is the meaning of continuous random variable. So this gives you the continuous random variable. Weight of a bag in kgs. Also this is it so this experiment takes the continuous values between certain interval, like say 30 to 100 kgs, but इनमें जो values आ रहे हैं वो सारे continuous आते हैं. It is a bounded interval, but in that bounded interval you will get the continuous. Okay, next is temperature of a city in a degree Celsius, that is also continuous. Okay, life of a bulb in a hours, that is also continuous. Speed of a vehicle, that is also continuous. Okay, so all these are the examples of continuous random variable. Now using the normal distribution we have to find the probability. Okay, so let us first talk about the normal distribution. Okay, normal distribution or the Gaussian probability distribution is one of the most commonly used distribution. मतलब जैसे ही आप continuous random variable ये word use करते हो तो obviously वहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, normal distribution. In most of the cases, almost in all cases, okay, we have to use this normal distribution in case of continuous random variable. Okay, so just give me 1 minute, let me check if there anyone in waiting room. So therefore this so it is widely used continuous distribution and plays a critical role, okay, in statistical interference. Okay. For large number of phenomena, a smooth bell-shaped curve serves as a mathematical model to describe their probability distribution. मतलब यहाँ पे क्या है, अभी तक आप जो probability calculate कर रहे हो, okay, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आप probability calculate कर रहे हो, जैसे कि binomial distribution में, in case of binomial distribution, what is the probability of getting R success? That probability is NCR P raised to R Q raised to N minus R. So in that case have a standard formula to calculate the probability. Okay, probability of getting R success. In a similar way, in case of, so this is the binomial distribution. In case of Poisson distribution, also you will have a standard formula to calculate the probability. So that is P of R is equal to, what is that formula? Yes, e raised to minus z raised to r upon r factorial. But if you compare this thing with the normal distribution, so अभी यहाँ पे आपके पास कोई standard formula नहीं आने वाला. Okay, so here we'll calculate the probability using area under the curve. So that is the big difference between the binomial and Poisson distribution and normal distribution. Okay, so in case of normal distribution, the probability is calculated using area under the curve. अब ये सब कुछ कैसे विल सी वन बाय वन, ठीक है, बट ये डिफरेंस आप याद रखो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व. ओके, सो विच इज दैट, वो आगे आने वाली है. सो these are again some examples of normal distribution or the continuous random variable. IQ of the university students, amount of annual rainfall, height of the person, weight of the person. These are again some examples of normal distribution where you can't find a gap between two consecutive numbers. Bounded होगी वो interval, okay, but in that bounded interval you can't find a gap between two consecutive numbers. So in that case specifically we have to use the normal distribution. Yeah, simply word से भी आपको समझ में आता है. It's a continuous, it takes actually a continuous values. And now mathematically how you actually get the formula for a normal distribution.
ओके, आप पहले ये याद रखो, सारे डिस्ट्रीब्यूशन का बेस, जो आपका बेस है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। और ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो मिल रहा है, ओके, दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो बेस जो आपका है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से आप ये आगे के सारे फॉर्मूले जनरलाइज कर रहे हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। ओके, so for example, what are the conditions for Poisson distribution? Can anyone tell me what are the conditions for the Poisson distribution, under which case you can apply a Poisson distribution, or Poisson distribution gives you the uh, best value in that particular experiment? Okay, what are the conditions? Can anyone tell me that? What are the conditions for Poisson distribution? ये तो पहले समझ में आना चाहिए कि हाउ यू डिफरेंशिएट दिस थ्री डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नॉर्मल एंड बाइनोमियल एंड पॉइजन, इनको डिफरेंशिएट करना इजी है, क्योंकि बाइनोमियल पॉइजन डिस्क्रीट के लिए होता है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? कैन एनीवन टेल मी दैट? Yes, yes. Can you repeat? Very large. Okay. Yes, yes, yes. So the number of observations or the number of trials, you can say, okay, n, that n is very large, okay, but the corresponding probability is very small. ये जनरली आप प्रोडक्शन कंपनी में आप देखते हो, वहाँ पे प्रोडक्शन आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, बट डिफेक्टिव जो पीसेस आपको वहाँ पे मिलते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लेस रहती है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ओके, अगर 10,000 के क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसमें डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट है वो हार्डली अराउंड 1 to 10 इस काउंट में आते हैं। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी निग्लिजिबल। ठीक है, सो इन दैट केस पर्टिकुलरली वी हैव टू यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वहां पे आप बाइनोमियल से भी जा सकते हो, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गिव यू द एरर कुछ तो वहाँ पे मतलब एरर बाइनोमियल से आपको वहाँ पे एरर ज़्यादा मिलेगी इफ यू कंपेयर विद द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसलिए इन दैट केस बेसिकली वी हैव टू यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इन अ सिमिलर वे, तो आपने यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपने n को लार्ज लिया था, p को स्मॉल लिया था। इन अ सिमिलर वे नाउ हाउ यू एक्चुअली राइट द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? सो फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली ऑब्टेन, okay, as a limiting form of the binomial distribution where n, which is the number of trials are which are very large, क्योंकि continuous value ही चाहिए आपको। number of trials are very large means at the end it become a continuous। ठीक है, and neither p and q is very small, so this is the difference between poison and normal। so यहाँ पे probabilities मतलब is neither p or nor q is very small, so probability यहाँ पे small नहीं आती। ठीक है, if you compare with the poison distribution, but आपके trials यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, so using this you will actually get a formula for normal distribution, and that formula is this। ठीक है, इसका भी प्रूफ यू कैन डायरेक्टली रेफर फ्रॉम एनी बुक, या आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉट एट ऑल, एंड इट्स दैट प्रूफ इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। ओके, बट प्रूफ लेंदी है, अगर आप देखोगे तो या बुक में भी है शायद। ओके, आप इजिली गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस इज द कर्व, ओके, विच यू गेट यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट p ऑफ x, आप यहाँ पे r भी बोल सकते हो, बट जनरली ये नोटेशन फॉलो होता है, इसलिए मैं आपको x में ही बोलता हूँ, बट एक्चुअली हमारे लैंग्वेज में हम यहाँ पे p ऑफ r कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस। बट हियर यू हैव टू इन केस ऑफ नॉर्मल इंस्टेड ऑफ r, ओके, वी विल जस्ट यूज द नोटेशन x। तो यहाँ पे इसको आपको रीड कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेस। सो दैट फॉर्मूला इज 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई। ओके, सिग्मा इज व्हाट इज सिग्मा? यस, व्हाट इज दिस? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज म्यू? हाँ, व्हाट इज सिग्मा? अरे अभी कितने बार यूज किया ये नोट? इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, दैट नोटेशन इज फिक्स। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू क्या होता है? मीन। ओके, रिमेंबर। ठीक है, so 1 upon standard deviation multiplied by under root of 2 pi e raised to minus x minus mu whole square upon 2 sigma square। ठीक है, तो आपको दिखने में तो ये फॉर्मूला ऐसा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हमें कहीं पे भी यह फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि ये सारा मतलब ये कैलकुलेशन डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना इज नॉट अ ट्रिवियल जॉब, या मैन्युअली या आपका जो कैलकुलेटर है वहाँ से करना इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, सो तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने, सो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। And if you draw the graph of this curve, so you will get a bell-shaped curve. ठीक है, just let me erase.
you will get a bell shape curve. That is the graph of P of x. And what is the probability? Okay, अगर आपको इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट करना, so that is also there. तो आपको मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन फाइंड अ प्रोबेबिलिटी यूजिंग एरिया अंडर द कर्व. तो यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी या जिस पॉइंट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो आपको एरिया से कैलकुलेट करनी है. कैसे मैं आपको एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, if I want to calculate a probability from x1 to x2, okay, if I want to calculate probability from x1 to x2, for example let us calculate probability from 0.2 to 0.8, ऐसा आप randomly ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट कंसिडर x is equal to 0.2, ये एक लाइन आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट x equal to x1. सपोज दिस पॉइंट इज सेम x1, कंसिडर अ सेकंड पॉइंट दैट इज x2. तब ये यहाँ पे मैं रैंडम कंसिडर कर रहा हूँ. वॉट एवर एरिया इज देयर बिटवीन x1 एंड x2, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज टोटली अ डिफरेंट अप्रोच, ओके, दैन दिस बाइनोमियल एंड पॉइजन. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करने वाले हो दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व. अभी आपको ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, तो इसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड चार्ट आने वाला है, या एक स्टैंडर्ड, अभी वो एग्जाम में तो वो डायरेक्टली ब्रैकेट में वैल्यूज गिवन रहेंगे, बट अगर थ्योरी एग्जाम में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व का एक चार्ट आ जाता है. तो वहाँ से आपको ये इजीली ये मतलब जैसे आपका लॉगरिथमिक टेबल होता है ना, वैसे एक टेबल होता है और वहाँ से आप ये सारे एरियाज कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, बट एज फार एज दैट एरिया इज ऑलरेडी देयर इन द ब्रैकेट. आप क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में कहीं पे ना वो एरिया आपको गिवन होगा. तो ये एरिया कैलकुलेट करने का पार्ट रेडीमेड आपके पास है. ठीक है, या तो आपके पास आप वो डायरेक्टली एक टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप या वो उसकी पीडीएफ भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस एरिया. ओके, हाँ, सो अभी आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था उसको ये हमने एक्सपांड करके उसको एन को वेरी लार्ज में कन्वर्ट करके नाइदर पी एंड क्यू वेरी स्मॉल यूजिंग दिस mathematical conditions. Okay, actually here you will get a normal distributive curve, that is p of x equal to 1 upon sigma under root of 2 pi e raised to minus x minus mu whole square upon 2 sigma square. ये पहला पार्ट था. उसके बाद now how you calculate a probability, whatever probability is there, that probability is nothing but area under the curve. तो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि x1 to x2 ये probability आपको कैसे कैलकुलेट करनी है. जस्ट कंसिडर एरिया बिटवीन x equal to x1 and x equal to x2. How you calculate the probability at a single point? तो ये मैंने एक इंटरवल के रेंज में बोला है कि 0.2 से लेकर 0.8 तक आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ये एरिया जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. बट हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब अगर आपको p at 0.8 कैलकुलेट करना है, जैसे आप ये बाइनोमियल पॉइजन में आपने ये बहुत बार किया. सो हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन यू टू सॉरी इट इज नॉट देयर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट कंसिडर अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0.8. अभी आप इमेजिन करो यहाँ पे कहीं पे आपका x इक्वल टू 0.8 ये पॉइंट आ रहा है. फिर आपको एरिया कहाँ से कंसिडर करना है, एंड कंसिडर एरिया फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू दिस पॉइंट. मतलब सिंगल पॉइंट के लिए आपका जो लोअर एंड होता है जहां से आपको एरिया कंसिडर करना है, दैट लोअर एंड इज म्यू ऑलवेज. That lower end is mu. So probability at x is equal to x1 is actually a probability from x equal to mu to x equal to x1. तो ये जो एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है that is your probability at x is equal to 0.8. ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है. मतलब ऐसे एक्चुअली आप यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, सो अभी आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इस कर्व के नीचे जो भी एरिया आपको मिलता है दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी. But we know that the highest value for probability is 1. The highest value for probability is 1. So the total area, so that implies the total area under this curve is also 1. इसलिए तो ये पॉसिबल है ना, इसलिए सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि जो एरिया आपको इस कर्व के नीचे मिलता है, जो एरिया आपको इस कर्व के नीचे मिलता है, दैट एरिया इज इक्वल टू 1. Therefore this curve is a special curve. Okay, or you can directly calculate the probability using this curve, this normal distributive curve. ठीक है, ओके, तो ये इनिशियल पार्ट है. मतलब इसके आगे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 0.2, तो आपको बस क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई एरिया फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू x इक्वल टू 0.2. बस ये एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है. x इक्वल टू म्यू यहाँ पे x इक्वल टू 0.2 आपका, लेट मी इरेज सम दिस,
x इक्वल टू 0.2 आपका सपोज यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, रैंडम में ले रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 0.2 आ रहा है. सो जस्ट आइडेंटिफाई दिस एरिया. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. यहाँ पे था, दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, और ये जो एरिया वो आपको गिवन होगा. अभी गिवन कौन सा एरिया होगा वो भी आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अभी यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमेशा जो आपका लोअर एंड होता है वो x इक्वल टू म्यू पे आता है. ओके, एंड फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट दैट म्यू इज डिफरेंट. अभी आप देखो, इस ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम विद दिस लोअर एंड ओनली. क्या होता है कि हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे म्यू कैलकुलेट करना होगा और फिर मुझे म्यू फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू x इक्वल टू 0.2 वो एरिया मुझे देखना होगा. दैट विल बी माय फाइनल आंसर. ठीक है, बट क्या हो रहा है, दैट म्यू इज डिफरेंट फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. ओके, इसलिए एक स्टैंडर्ड टेबल में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. अब धीरे धीरे समझो कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसलिए जैसे कि लॉगरिथम का एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, कोई भी एग्जांपल आने दो, आप उसी टेबल से सारे वैल्यूज कैलकुलेट करते हो. अभी यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो लोअर एंड आता है वो x इक्वल टू म्यू आता है. हर एक एक्सपेरिमेंट का म्यू अलग अलग होता है. इसलिए अगर मैं एक्सपेरिमेंट चेंज करता हूँ, म्यू चेंज होगा तो ग्राफ भी चेंज होगा. सो फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट फॉर दिस केस, माई ग्राफ इज डिफरेंट. इसलिए एक स्टैंडर्ड टेबल जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे ग्राफ आपको टेबल से कैलकुलेट करना है, बट वो सिंगल टेबल आप यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम दिस फॉर्मूला. इसलिए ओके, वी नीड टू चेंज दिस फॉर्मूला. ओके, हमें बस इसको मैथमेटिकली चेंज करना है, बट लॉजिक वही होगा जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. ओके, तो इसको हमें मैथमेटिकली चेंज करना है. ओके, ऐसे चेंज करना है सो दैट यहाँ पे जो आपकी लाइन आ रही है द हाईएस्ट पिक और x इक्वल टू म्यू दिस पॉइंट, ओके, ये वैल्यू आपकी z इक्वल टू 0 में आपको कन्वर्ट करनी है. मतलब क्या है, कोई भी एग्जांपल आने दो, लोअर एंड आपका हमेशा 0 चाहिए. मुझे ऐसे चेंज करना है. तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड टेबल मेरे पास आ जाएगा और उस स्टैंडर्ड टेबल से मैं सारे एरियाज कैलकुलेट कर सकता हूं. अदरवाइज क्या करना होगा मुझे, फॉर एक्स म्यू इक्वल टू 0.2 का एक टेबल आने वाला है, म्यू इक्वल टू 0.3 का एक टेबल आने वाला है. म्यू कैन टेक इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज, तो इन्फिनिटली मेनी टेबल तो मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, अगर स्टैंडर्ड मुझे पहले ही एरियाज का सारा कैलकुलेशन अगर मुझे करके रखना है या एक टेबल के फॉर्म में लेकर आना है, बट हर एक म्यू के लिए आई कैनॉट ड्रॉ दैट टेबल या आई कैनॉट आइडेंटिफाई ऑल दोज वैल्यूज. ठीक है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, म्यू को ही मैं 0 में कन्वर्ट करने वाला हूँ यूजिंग मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन. सो आई विल टेल यू दैट. तो ये मैं क्विकली ले रहा हूँ, इसमें प्रूफ है. हाँ, अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला, आई जस्ट पुट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा. ओके, इसका लॉजिक क्या है, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू म्यू ये पॉइंट पुट करते हो ना, तो ये डायरेक्टली कौन से पॉइंट में कन्वर्ट होता है, z इक्वल टू 0 में कन्वर्ट होता है. ये कौन से पॉइंट में कन्वर्ट होता है, z इक्वल टू 0 में कन्वर्ट होता है. तो अभी क्या होगा, एरिया वही रहेगा, इसको मैंने बस ट्रांसफॉर्म किया. दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब मैंने एरिया को चेंज नहीं किया, जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला था मैंने उसको वैसे ही रखा है, बिकॉज दैट ओरिजिनल फॉर्मूला गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी. तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. ओके, मुझे बस क्या करना है, आई डोंट वांट x इक्वल टू म्यू एट दिस मिडल, x इक्वल टू म्यू टू बी द मिडल पॉइंट ऑफ दिस बेल शेप कर्व. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि म्यू चेंज होता है तो मेरा ग्राफ चेंज होगा. आई डोंट वांट दैट. इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूँ, z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा. तो उसकी वजह से क्या होगा, x इक्वल टू म्यू ये जो पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट इज रिप्लेस बाय z इक्वल टू 0. एंड अदरवाइज आपका ग्राफ सेम आने वाला है, एरिया भी सेम आने वाला है. ठीक है, तो नाउ माय क्वेश्चन बिकम, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी एट x1 कैलकुलेट करनी है, दैट इज द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू, दैट इज नथिंग बट एरिया फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू x इक्वल टू x1 by this original definition. Okay, but here now I have transformed this given equation, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये लेंथी टाइप का इक्वेशन, I have transformed this equation using this substitution. कैलकुलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, if you want you can refer, but orally भी आप ये चीज याद रख सकते हो. Using this substitution, z equal to x minus mu by sigma, I can transform this original equation, and after transforming this you will get this equation. ये आपका न्यू इक्वेशन है अभी, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज. ये मैंने बहुत बार किया. स्टैंडर्ड डिवीजन का भी जो फॉर्मूला था कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैंने उसको चेंज किया था, है ना. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर केस में मैंने कैलकुलेशन पर्पज के लिए उसको सिंप्लीफाई किया. सेम लॉजिक यहाँ पे भी आप याद रखो. एक्चुअल फॉर्मूला यही है, बट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आई नीड टू चेंज दिस फॉर्मूला. मतलब यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसको मैं z वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला हूँ. कैसे, जस्ट पुट z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा. ओके, तो उस केस में ग्राफ आपका यह आता है.
ये जो नीचे ड्रॉ किया है मैंने, ये आपका ग्राफ आता है। अभी आप देखो सेंटर पे z इक्वल टू 0 लाइन है, राइट साइड में पॉजिटिव z के वैल्यूज है, लेफ्ट साइड में निगेटिव z के वैल्यूज है। नाउ फ्रॉम दिस, अभी इस z इक्वल टू 0 के लिए ओके आप एक स्टैंडर्ड टेबल क्रिएट करके रख सकते हो। ओके सो वो आपको इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, बट अभी एमसीक्यू के लिए आपको वो टेबल रेड करने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए वो पार्ट मैंने ऐड भी नहीं किया है। एरिया आपके पास रेडीमेड आने वाला है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन होगा, आपको बस वो एरिया देखना है और कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ। बट अगर थियरी में अगर ये क्वेश्चन जाता है तो उस केस में आपको टेबल प्रोवाइड मतलब हो जाएगा। ओके एंड वहां से फिर आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है। ओके बट राइट नाउ इट इज नॉट देयर, सो विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दैट। ठीक है, ये टेबल आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। ओके हाँ, तो अभी इस केस में हियर आई ट्रांसफॉर्म दिस x वेरिएबल टू z, सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x1, नाउ आई विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट z1, क्योंकि x1 वेरिएबल अभी मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z1 में, और z1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, दैट वेरिएबल x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रखो, z की वैल्यू क्या है, x वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ तो अभी इस केस में मेरा एरिया क्या होगा, इस केस में मेरा एरिया क्या होगा, x इक्वल टू म्यू की जगह पे अभी 0 आने वाला है, सो एरिया विच लाइज बिटवीन 0 एंड z1। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो गया अभी 0 से, तो z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x1 की जगह पे आने वाला है z इक्वल टू z1। तो इन बिटवीन जो एरिया होगा फ्रॉम 0 एंड z1, दैट इज माई फाइनल प्रोबेबिलिटी। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, या कुछ डाउट्स है बोलो। क्या क्या किया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा था, पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ओके मैंने स्टार से डिनोट किया है। ओके सो इफ आई ड्रॉ दैट ग्राफ इज अ बेल शेप कर्व, करेक्ट, एंड whatever the area under that curve, that gives you the probability, that is the idea about normal distribution। ठीक है, where you will get a probability using the area under the curve। ओके फिर आगे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो जो गिवन फॉर्मूला था उसमें मिडल पे या हाई पीक पे या मिडल वैल्यू आपकी एक्स इक्वल टू म्यू आती है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए म्यू आपका अलग अलग होगा, मतलब मुझे हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो एरिया कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले को मैंने चेंज किया है। नाउ फॉर एवरी गिवन एक्सपेरिमेंट z इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं z इक्वल टू 0 के लिए एक स्टैंडर्ड टेबल एरिया का एक स्टैंडर्ड टेबल में क्रिएट करके रख सकता हूं। तो जस्ट बाय using that table I can find area at any point, z equal to z1, z equal to z2, z equal to z3, at any random point I can calculate that area। okay, and so just for that I need to do this transformation। ठीक है, इसलिए मैंने x वेरिएबल को किस में चेंज किया है, z में कन्वर्ट किया है, दैट z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। आगे एग्जांपल से भी ये चीजें थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट, बोलो कुछ डाउट्स है यहां तक। जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोलो, डोंट वरी। यस, एनी डाउट है तो यस बोलो, नहीं है तो नो तो बोलो एटलीस्ट। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? ठीक, ओके, विल टेक सम एग्जांपल आल्सो, सो और भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या क्या मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है। एक्स वेरिएबल को आप जेड वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, बट जो एक्स वेरिएबल का जो आपका ग्राफ था, ठीक है, एंड एक जेड वेरिएबल का जो आपका ग्राफ है, दोनों ग्राफ आपके सिमिलर है, बिकॉज वी कांट चेंज द एरिया। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो सर्कल को, अगर आप किसी और एरिया में कन्वर्ट करते हो, ओके, बट वो जो एरिया आपको मिलता है वो एरिया सेम आना चाहिए, एरिया विल रिमेन सेम। ओके, ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंसिडर करना है। सो यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज माय ट्रांसफॉर्मेशन, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, आपका एरिया सेम ही रहता है। ठीक है, बस वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ये x के लिए था तो ये z के लिए, यहाँ पे मिडल पे x इक्वल टू म्यू था तो यहाँ पे अभी z इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, एंड नाउ विल टॉक अबाउट ओनली दिस एरिया, z का जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो कर्व है, हमें उसके रिलेटेड ही सारा लर्न करना है। ठीक है, नाउ दिस इज यूर गिवन कर्व दोनों केस में सेम ही रहते हैं, इट्स अ बेल शेप कर्व। Okay, now at center you will have z equal to 0. The total area under this curve is 1. Okay, because it gives you the probability and we know that the highest probability is 1. That implies the total area is 1. Okay, तो ये middle है. So what is this area? If z equal to 0 is the middle point, what is the half area? 0 से लेकर 0 onwards. ये area क्या आता है आपका? Yes? What is this half area?
ये क्या आएगा ऑब्वियसली आपका, बोलो। इफ द टोटल एरिया इज 1, z इक्वल टू 0 इज द मिडल लाइन, व्हाट इज दिस एरिया जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, हाफ, दैट इज 0.5, और ये भी एरिया आपका क्या होगा 0.5। ये लॉजिक आपको यूज करना है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं। इफ आई नो एरिया फ्रॉम 0 to 0.2, ये जेड है, दैट एरिया से 0.47, ओके, यहाँ पे कहीं पे 0.2 आ रहा है, ठीक है, और ये एरिया गिवन है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, दैट एरिया इज समथिंग 0.47, ठीक है। नाउ व्हाट इज एरिया फ्रॉम 0 to -0.2, एनीवन, व्हाट इज द एरिया फ्रॉम 0 to -0.2, क्या आने वाला है वो एरिया, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ एरिया आपका चेंज नहीं होने वाला। तो एग्जाम में मे बी वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट -0.2, ठीक है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट -0.2। तो बेसिकली आपको एरिया कहाँ से लेना है, 0 से 0.2 तक ही एरिया कंसिडर करना है, क्योंकि 0 से 0.2 एंड 0 से -0.2 ये दोनों एरिया सेम ही है। आपको एग्जाम में 0 से 0.2 तक का एरिया गिवन होगा, बट अगर क्वेश्चन में आपको -0.2 के लिए कैलकुलेट करना है, सो दैट एरिया इज आल्सो इक्वल टू एरिया एट 0.2। तो ये सारी चीजें आपको आगे यूज करनी है, तो एग्जाम्पल से ही वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये याद रखो, ये सारे नोटेशन फॉलो होते हैं। एरिया एट Z1 का मीनिंग क्या होता है, एरिया एट Z1 का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम 0 to Z1 एरिया आपको गिवन है, हमेशा लोअर एंड आपका 0 होगा, ओके, सारे क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन से आप बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नाउ योर मिडल वैल्यू इज 0, इट इज नॉट इक्वल टू म्यू। तो ये छोड़ दो, अभी आपको ये कहीं पे भी यूज नहीं करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता x इक्वल टू म्यू का जो पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके z इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। इस ग्राफ के एरियाज आपको गिवन रहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में या अगर ये नोटेशन यूज होता है a एट 2 इक्वल टू 0.4, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ब्रैकेट में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया फ्रॉम 0 to 2, एरिया फ्रॉम 0 to 2, ये जो पॉइंट है इन बिटवीन का जो एरिया वो क्या है 0.4 है। So remember area at Z1 means area from 0 to Z1, correct? And next is what? ये आपको पता ही है, Z1 to Z2 means area from Z1 to Z2। जहाँ पे इंटरवल गिवन है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, बट एट अ सिंगल पॉइंट योर लोअर एंड इज 0, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग थे, टेक दोज क्वेश्चंस एंड विल डायरेक्टली एमसीक्यूज इतने ज्यादा नहीं है इस टॉपिक के, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस कर्व, ओके, फ्रॉम म्यू टू इंफिनिटी, यस एनीवन, what is the integral of this y from mu to infinity, बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मीनिंग आपको पता ही है, दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ये आपको पता ही है, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके। सो एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द एरिया फ्रॉम म्यू टू इंफिनिटी in case of x variable, in case of x variable what is the area from x equal to mu to infinity, 0.5, तो हाफ एरिया ही चाहिए आपको, ठीक है। सो दैट एरिया इज 0.5, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x वेरिएबल का ही है क्योंकि ये इक्वेशन x में, तो ये x वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। अब व्हाट इज द एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, व्हाट इज द एरिया, 1, टोटल एरिया इज 1, ठीक है। सो दीस आर द 1 मार्क क्वेश्चंस। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट हम यहाँ पे करने वाले ना, वो एक्चुअली समझ में आएगा, मतलब एरिया अंडर द कर्व आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एरिया से प्रोबेबिलिटी मिलती है, बट कैसे सब कुछ होगा दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, सो मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है, इसे आप याद रख सकते हो।
mean of x is 15, so what is given? Mu is given, mean, correct. Standard deviation is 3, so sigma is 3, correct. What is given? Z, given that for z equal to 1 area is this, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि एरिया एट z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.3413, ठीक है। हाँ, और आपको कैलकुलेट क्या कर, इसका मीनिंग क्या हो गया, कहां से कहां तक आपको एरिया गिवन है? यस, एरिया एट z इक्वल टू 1 इज दिस, मीन्स व्हाट आपको कौन सा एरिया गिवन है? एनीवन? फ्रॉम z इक्वल टू 0 दिस पॉइंट टू z इक्वल टू 1, रैंडम का पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव पॉइंट राइट साइड में आते हैं, नेगेटिव पॉइंट लेफ्ट साइड में आते हैं, सो z इक्वल टू 1, तो आपको ये एरिया गिवन है, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस बाय अनदर कलर, दिस इज गिवन, दिस एरिया इज गिवन, ठीक है, एंड दैट एरिया इज क्या है गिवन है वो? 0.3413, ओके। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, उस पर फोकस करते हैं। वी हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल 18। बट आपको मैंने क्या बोला है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन में x वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको x वेरिएबल को z में कन्वर्ट करना है, ओके। सो फर्स्ट कैलकुलेट अ वेरिएबल करस्पॉन्डिंग z वेरिएबल करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 से आपको z वेरिएबल कैलकुलेट, फॉर्मुलाइज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज, सो x इज 18, म्यू इज 15, करेक्ट, सिग्मा इज 3, ठीक है, दैट बिकम 1 ना, करेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 18 के करस्पॉन्डिंग मेरा z वेरिएबल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है? नाउ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी when x is greater equal 18, now my question become probability where z is greater equal 1. Is this clear to everyone? ये समझ में आ रहा तो सारे क्वेश्चन हो गए, ओके। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन में x वेरिएबल को z में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे रिजल्ट z के लिए आपके पास है, ओके। सो नाउ दी and that conversion is what, that formula is what, z equal to x minus mu by sigma, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ओके। तो x इक्वल टू 18 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या आती है? 1, फॉर्मूला यूज करके। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर इक्वल 18 का मीनिंग क्या हो गया अभी? प्रोबेबिलिटी फॉर z ग्रेटर इक्वल 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? आ रहा है कि नहीं? ओके, हाँ, यह हमेशा आपको करना है, 18 के करस्पॉन्डिंग z कैलकुलेट करो, एज इट्स वहां पे रखो। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, अभी आपका क्वेश्चन है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कौन सा एरिया चाहिए? एरिया वेयर z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब आपको ये एरिया चाहिए, 1 के आगे का एरिया आपको चाहिए। व्हाट इज दैट एरिया जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया? व्हाट इज दैट एरिया? हाँ, मुझे पहले बोलो ये एरिया क्या है? हाँ, क्योंकि ये टोटल एरिया आपको पता है 0.5 आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? 0.5 एरिया में से ये गिवन एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज योर आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ब्लू कलर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या था? 1 तक एरिया गिवन था, z इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक एरिया आपको गिवन था। तो आपने क्या किया? 0.5 में से ये 1 तक का एरिया सब्ट्रैक्ट किया है, सो यू विल गेट एरिया वेयर z ग्रेटर इक्वल 1। सो व्हाट इज दिस? 0.5 minus 0.3413, व्हाट इज दैट वन? ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जस्ट ऑप्शन ए, ओके, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक करो, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो उसमें लिख लेते हैं। हाँ, नाउ नेक्स्ट, x is normally distributed, again same question is there। आप कैलकुलेशन चेक करो, मेरे पास कैलसी कुछ नहीं है। मीन ऑफ x is 15, so mu is equal to 15, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, ठीक है। व्हाट इज गिवन? z इक्वल टू 1666 के लिए एरिया आपको ये गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना आपको मैंने बोला है, एरिया व्हेन z इज इक्वल टू 1.666, एरिया एट दिस पॉइंट इज 0.4515। इमीडिएटली इसको ड्रॉ भी करके रख सकते हो आप, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब आगे ही आने वाला है कहीं पे। दिस इज माई z इक्वल टू 1.666,
666 and this area is given. That area is 0.4515. कैलकुलेट क्या करना है अभी वो देख लेते हैं. What we have to find? We have to find a probability when x is less equal 10. ये x वेरिएबल का था, आपको इसको पहले z वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. जस्ट पुट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विच इज इक्वल टू 10 माइनस म्यू इज व्हाट, मीन इज 15 divided by sigma is 3. ठीक है, that is minus 5 by 3. Yes, and what is this value? What is minus 5 by 3? What is minus 5 by 3? ये यही आने वाला है क्योंकि यही पॉइंट आने वाला है. ओके, बस माइनस साइन है, सो माइनस 1.666. ठीक है, तो बेसिकली आपका भी क्वेश्चन क्या बन गया? Probability of x less equal 10 is nothing but probability of z less equal minus 1.666. अभी आप देखो minus 1.66 यहाँ पे आने वाला है. This is my z equal to minus 1.666. मुझे उसके लेफ्ट साइड में, मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? लेट मी हाईलाइट बाय अ ब्लू कलर. ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? ये एरिया कैलकुलेट करना है. नाउ टेल मी व्हाट इज दैट वैल्यू. मुझे क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो बोलो, डायरेक्ट आंसर मत. ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है. क्या कैसे? ओके, तो आपको पता है कि ये एरिया अगर 0.4515 है, ठीक है, ये एरिया, तो ये भी एरिया सेम होगा, दोनों सेम ही है. तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड का भी टोटल एरिया 0.5 आता है, राइट साइड में जो होता है वही लेफ्ट साइड में होता है. इट इज सिमेट्रिक ग्राफ. सो 0.5 माइनस 0.4515. That is your final answer. And what is that? Which option is correct? Option C. ठीक है, तो ये याद रखो, z जो गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वही आपका मतलब x के करस्पॉन्डिंग वही z आता है. तो ये आपको बस देख के ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे आपको जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा. ब्रैकेट में जो z गिवन होता है ना, वही आपका z आने वाला है x के करस्पॉन्डिंग. ओके, नाउ लेट मी गो टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. Again x is normal distributed. Now let me do it quickly. Mean is 30. Okay, variance given है. हाँ, variance given है, अच्छे से देखो. Variance is 25. So what is standard deviation? This under root of variance 5 है ना. Okay, probability कैलकुलेट करनी है. पहले एरिया लिख लेते हैं, क्या है ब्रैकेट में. एरिया करस्पॉन्डिंग z इक्वल टू 0.8, मतलब when z इक्वल टू 0.8 that area is 0.2881 and z equal to 2 का एरिया भी गिवन है. सो when z equal to 2 that area is 0.4772. ठीक है, अब ये ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ही कर देता हूँ. ओके, z equal to 2 and z equal to 0.8, तो 0.8 ये होगा. ठीक है, and this area is given. This area is 0.2881. next is z equal to 2. यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होगा, z equal to 2 and that area. अब ये एरिया कौन सा होगा? 0 से होगा. ये z equal to 2 का जो एरिया होता है ना, वो फ्रॉम 0 होगा. अगेन बिकॉज इन एवरी केस योर लेफ्ट पॉइंट इज 0. मैं उसको क्या करता हूँ, अलग कलर से ले लेता हूँ, सो कन्फ्यूजन नहीं होगा. लेट मी टेक अनदर कलर. तो z इक्वल टू 2 का जो एरिया होगा ना, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ. एंड दैट एरिया इज क्या गिवन है? 0.4772. ठीक है, हाँ, ग्रीन कलर का और रेड कलर का ये यहाँ तक ही है. और ये जो पहला है ना 0.8 का, ये एरिया है. हमेशा लोअर एंड 0 है. ओके, नाउ अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है? हियर वी हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन 26 एंड 40. ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 26 के करस्पॉन्डिंग z कैलकुलेट करो और 40 के करस्पॉन्डिंग भी z कैलकुलेट करो. तो अभी आप मुझे डायरेक्टली बोलो, आई थिंक इट्स नॉट ए डिफिकल्ट. ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला वही है. z का फॉर्मूला
x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो टेल मी डायरेक्टली 26 के करस्पॉन्डिंग z क्या आता है? सो 26 माइनस म्यू माइनस 0.8. ठीक है, लेस इक्वल z लेस इक्वल 40 के करस्पॉन्डिंग z क्या आता है? इन दोनों में से होगा, प्लस और माइनस डिफरेंस आ सकता है. हाँ, क्या आता है? +2 आता है. इज इट करेक्ट? चेक करो करेक्ट है या रॉन्ग है. आप खुद चेक करो. इज इट करेक्ट और नॉट? ओके, तो बेसिकली आपको एरिया कहां से कैलकुलेट करना है, अभी उसको मार्क कर लेते हैं. ठीक है, सो -0.8 से आपको स्टार्ट करना है यहां से. ठीक है, -0.8 से आपको स्टार्ट करना है अप टू दिस 2. यहां तक आपको एरिया चाहिए, जितना क्वेश्चन से मुझे समझ में आ रहा है उतना. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज दैट एरिया? अभी उसके लिए आपको क्या पता है? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक एरिया आपको पता है, विच इज 0.4772. ठीक है, अभी आपको कौन सा एरिया चाहिए? 0 से लेकर 0.8 तक का एरिया. तो 0 से 0.8 तक का एरिया आपको भी गिवन है 2881. सो जस्ट ऐड दिस टू वैल्यूज. ऑप्शन डी आ रहा है क्या? तो ये आपको ग्राफ से ही समझ में आने वाला है, इसलिए आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करो, आपको क्लियरली समझ में आता है कि क्या कैलकुलेट करना है. ठीक है, -0.8 से लेकर 2 तक का एरिया आपका ये आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. ठीक है, ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ सैंपल ऑफ 1000 कैंडिडेट. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के आपको पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. टाउन क्या है मतलब उनमें से, ओके नहीं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी, सॉरी. द मीन ऑफ सर्टन टेस्ट इज 14. जस्ट 1 मिनट. मीन ऑफ सर्टन टेस्ट इज 14. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.5. assuming a normal distribution, the probability of candidate getting less than 8 marks means probability of x less than 8 आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, अभी 8 के करस्पॉन्डिंग z का फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू. म्यू इज 14 अपॉन सिग्मा. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? क्या आता है ये? z लेस इक्वल -2.4. करेक्ट है? ओके, सो z लेस इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो माइनस दिखाई दे रहा है, सो z -2.4. हाँ, और आपको क्या गिवन है अभी आप रीड कर सकते हो, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ. अभी आपको क्या गिवन है? 0 से लेकर 2.4 तक का एरिया आपको गिवन है, विच इज 0.4918. और आपको क्या चाहिए? 2.4 के पीछे वाला एरिया चाहिए. मतलब ये अगर आप ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, -2.4 यहाँ पे आने वाला है, आपको इसके पीछे का एरिया चाहिए. तो आपको क्या करना होगा? 0.5 में से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है? 0 से लेकर 2.4 तक, दैट इज गिवन. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, in a normally distributed group of 450 students, mean is given, mean is 42, standard deviation is given which is 8. The number of students scoring less than 48 marks. ठीक है, so p of x less than 48 आपको कैलकुलेट करना है. उससे पहले x इक्वल टू 48 के करस्पॉन्डिंग z कैलकुलेट करो, दैट इज 48 माइनस म्यू विच इज 42 अपॉन सिग्मा. एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? बोलो. इज इट 0.75? मतलब गिवन है, मतलब वही होगा, इसलिए मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ. ठीक है, सो बेसिकली नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर z लेस देन 0.75. करेक्ट. हाँ, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे 0.75 होगा. ठीक है, करेक्ट किया ना मैंने सब कुछ. ओके, now what is area less than this 0.75? बोलो 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 जल्दी, don't have that much time.
मैं पहले ये बोलो इस क्वेश्चन का आंसर दो. What is the probability when z is less than 0.75? आपको क्या गिवन है? 0 से लेकर 0.75 तक की प्रोबेबिलिटी गिवन है. ठीक है, ये ब्लू कलर में जो है वो आपको गिवन है. 0 से लेकर 0.75 तक की प्रोबेबिलिटी विच इज 2734. हाँ, और मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी फॉर z लेस देन 0.75. व्हाट इज दैट? टेल मी क्विकली. ये क्या आएगी? हाँ, एनीवन? करेक्ट ना, क्योंकि आपको इसके पीछे जाना है. इसके पीछे ये तो आपको पहले ही पता है. दिस एरिया इज 0.5 है ना, तो 0.5 प्लस अभी ये एरिया आपको गिवन है 0.2734. ओके, डू इट. ये क्या आ रहा है? ऐड करके बोलो क्या आ रहा है. डू इट ऑन कैलकुलेटर क्विक. हाँ, स्लोली बोलो. 0.7734. ओके ओके, ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी है, बट आपको ये 450 स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट करना है. सो 450 मल्टीप्लाई बाय 0.7734. व्हाट इज दैट? ओके, 348 आ रहा है एग्जैक्टली. हाँ, ऐसे बोल दो तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 348. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन. How much time is there? 2 minutes. Okay. Okay. Almost we are at the end. In a certain examination test, 1,000 students appear in a subject of mathematics. Average marks obtained, it's 50%. That is 50 upon 100. That is 0.5. Okay. Standard deviation is 5%. So 5 upon 100. That is 0.05. Okay. If marks are normally distributed, number of students expected to get more than 60% marks is equal to what? So x is greater equal, okay, 60% means 60 by 100. That is probability of x greater equal 0.6. ये आपको कैलकुलेट करना है. So first calculate this z corresponding 0.6. बोलो x equal to 0.6 के corresponding z क्या आएगा? Which is 0.6 minus x minus mu on sigma. What is this value? ये क्या आ रहा है कैलकुलेशन? 2. ओके, क्योंकि 2 का गिवन है तो वो 2 ही आएगा. So this is nothing but probability of z greater equal 2. आपको क्या गिवन है? 0 से लेकर 2 तक प्रोबेबिलिटी गिवन है. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ क्विकली, दिस इज z इक्वल टू 0 एंड दिस इज z इक्वल टू 2. यहाँ तक आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.4772. ओके, बट मुझे ग्रेटर इक्वल टू. सो इफ आई यूज अदर कलर फॉर दैट, तो आपको ये एक्चुअली कैलकुलेट करना है. 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए. सो दैट इज व्हाट? क्या होगी वो? 2 के आगे तो 0.5 से 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट करो. 0.4772. टेल मी दिस. बोलो ये. टेल मी दिस. बोलो जल्दी. व्हाट इज 0.5 माइनस 0.4772? यस, 0.228. करेक्ट. जीरो पॉइंट जीरो ऐसा है क्या? 0.0 दिस. सो फाइनल आंसर इज व्हाट? 1000 से शायद मल्टीप्लाई करना है ना. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.0228. सो व्हाट इज दैट आंसर? बोलो. यस, ओके. हाँ, सॉरी इट्स 10,000. ओके, नाउ टेल मी. 228. Okay, so this is your final answer. Okay, now next it's one mark question for a normal variable x. Now side by side you can put your roll number in chat box also. Normal variable with
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज दिस। आपको बस म्यू का फॉर्मूला चाहिए, व्हाट इज म्यू एंड व्हाट इज सिग्मा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। दैट फॉर्मूला है, अभी जितना मुझे याद आ रहा है मैं लिख लेता हूँ, सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई रेज टू माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सो इफ यू कंपेयर विद दिस, तो सिग्मा आपका 3 आ रहा है ना, सिग्मा 3, म्यू इज 6, सो 6 3 ये आपका आंसर होगा। यू कैन जस्ट कंपेयर विद द फॉर्मूला, यू विल गेट दैट वैल्यूज। ठीक है, नाउ ओके, आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखो, जो मैंने सॉल्व किए थे, एरिया डिपेंड ऑन द एरिया, वो ज्यादातर आपको आते हैं या वही आने वाले। ठीक है, उसी टाइप के फॉर्मूला क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। वैल्यूज अलग अलग होगी, एरिया अलग अलग होगा, बट लॉजिक वही है।